آج دو حوالوں سے ہم باہر نکلے ہیں. ایک اس ظلم کے خلاف احتجاج اور یوم سوگ کے لیے جو پرسوں مسجد حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا میں جمعے کی نماز میں جب نمازی سجدے میں تھے خودکش حملہ ہوا. اور جتنے شہید ہیں سجدے میں شہید ہیں, جتنے زخمی ہیں وہ سجدے میں زخمی ہیں. آپ دیکھ لیں اسلام آباد کے اندر جو پایا تخت ہے پاکستان کا, یہاں پر سیکیورٹی کا یہ حال ہے, سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے. حالانکہ میرا ماننا میرا ایمان ہے پاکستان کی فورسز بہترین سیکیورٹی دے سکتی ہیں اگر ان کی توجہ سیکیورٹی پر ہو تو. یقین کر لیں کوئی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا, نہیں آ سکتا. توجہ اگر سیکیورٹی پر نہ رہے, پولیٹیکل ورکر کے پیچھے لگے رہے آپ, وہ بیچارے جو بے ضرر ہیں, جو اس ملک کی سیاسی زندگی کی حیات ہے, علامت ہیں. جس ملک کے اندر سیاست مر جاتی ہے اس ملک کی سافٹ پاور مر جاتی ہے, لوگ لا تعلق ہو جاتے ہیں, ملک تباہ ہو جاتے ہیں. کوئی بھی ملک کے ساتھ خدا نخواستہ کوئی نقصان ہونے کا خطرہ ہوا کہتے ہیں الگ ہو جاتے ہیں, جو مرضی آپ کر لیں. ملک سیاسی زندگی, سیاسی ایکٹیویٹیز, احتجاج جسے آپ کہتے ہیں, ظلم کے خلاف احتجاج, ناانصافی کے خلاف احتجاج, لا قانونیت کے خلاف احتجاج. اگر ہم لا قانونیت کے خلاف احتجاج کریں گے آپ پولیس والوں کو بھی فائدہ ہے, حکومت کو فائدہ ہے, لا اور انفورسمنٹ ایجنسیز کو بھی فائدہ ہے کہ عوام اٹھتی ہے لا قانونیت کے خلاف قانون کے حق میں اٹھ رہے ہیں. یہ آپ کا فائدہ ہے کیونکہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے, لا کو لاگو کرنا, انفورس کرنا لا کو. ہم جو بھی احتجاج کرتا ہے لا قانونی کے خلاف وہ حقیقت میں اپنے وطن کی خدمت کر رہا ہوتا ہے, اپنے آئین کی عزت اور احترام کا, اپنے قانون کی حرمت کا خیال رکھ رہا ہوتا ہے. لہٰذا احتجاج پرامن احتجاج کرنے دینا چاہیے. لوگوں سے کہا جائے باہر نکلو, دنیا میں امیج بھی اچھا ہوتا ہے ایک ملک کا. لہٰذا پرسوں جو ظلم ہوا ہے ہمیں بہت دکھ ہے. ادھر ہم لاشیں اٹھا رہے تھے, جنازے پڑھ رہے تھے, ادھر جناب والا لاہور میں جشن منایا جا رہا تھا, ناچ ہو رہا تھا. حکمرانوں کے بارے میں کہا جاتا ہے اللہ نے جو رسول بھیجے ہیں, حکمران اگر عوام میں سے ہوں گے نا یہ ظلم نہیں ہوں گے. پھر عوام جن کا یہ ملک ہے, نہ ایلیٹ بے رحم ایلیٹ, نہ جو اپرچونسٹ ایلیٹ ہے, وہ نہیں. اچھے انسان جب حکومت کریں گے تو وہ آگے آئیں گے تو ان کو آنے کا موقع دیا جائے گا. لہذا کے خلاف جو زیادتی ہے یہ تھا کہ یہ ان کو ان کے جنازے سارے ہوتے, سارے ہم مسلمان سارے پاکستان کے جنازوں میں شریک ہوتے, حکمران ہوتے, اور قاتلوں کو یہ پیغام جاتا کہ تم ہمیں آپس میں نہیں بانٹ سکتے ہو, ہم سارے تم جتنا ظلم کرو گے ہم اتنا اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ. لہذا انہوں نے کیا کیا ہے, جنازے لے جاؤ, جنازے اٹھاؤ, لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ. یا اللہ. اور پتہ ہے مرے کون ہے, شہید کون ہوئے ہیں؟ اکثریت یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کی ہے, یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کی جو دور دراز سے آئے ہوئے تھے, یہاں پڑھ رہے تھے. پتہ نہیں والدین کس طرح سے پیسے اکٹھے کر کے ان کو پڑھا رہے تھے. BS کے بچے تھے, سگے 2 بھائی شہید ہیں, 3 شہید ہیں, فیملی کی فیملیاں اجڑ گئی ہیں. ایک آدمی اس کے 2 بیٹے دونوں مارے گئے, شہید ہو گئے. گھروں کے رشتہ دار ملا کے 6 شہید ہیں. افسوس کے ساتھ کرنا پڑتا ہے. ہم نے اس دن میرے ساتھ بات کی, ہم نے کوئی اس کو خدا نخواستہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں ہونی چاہیے. ظلم ہے یہ چیزیں, اصل چیزوں سے توجہ ہٹ جاتی ہے, یہ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن اسلام آباد کی پولیس ہو, ہمارے سیکورٹی کے ادارے ہوں, ہمارے حکمران ہوں, ہمارے وزارت داخلہ کے لوگ ہوں, سارے جواب دیں شہیدوں کے خون خراب میں اور ظلم کے ہیں. پہلے بھی وہاں پر خودکش حملہ ہو چکا ہوا ہے. انہیں چاہیے کہ ملک میں نہ امنی ہے,
पुलिस के लोग जाएं, सिक्योरिटी के लोग जाएं, मसाजिद को विजिट करें कि यहाँ पर कोई कमी तो नहीं है, एडवाइस करें कि आप इस तरह से अपनी सिक्योरिटी करें, कैमरे चेक करें, जिसने कैमरे नहीं लगाए हुए, जो सिक्योरिटी का बंदोबस्त नहीं किया, उनको सजा दें, बात करें उनके साथ, सपोर्ट करें उनको, जो जानबूझ के गलती कर रहे हैं उसको सजा देंगे। ये कैसे हो रहा है? यहाँ सैकड़ों हजारों लोग नमाज पढ़ते हैं, मुल्क नाअमन है, लेकिन हर तरफ से नाअहली हमारे सामने है, नालायकी हमारे सामने है। पूरा पाकिस्तान गम की और सौ की हालत में। एक तो वजह ये है। दूसरी वजह, हम यहाँ क्यों हैं? 24 फरवरी को 2024 को 8 फरवरी को पाकिस्तान के, देखें, कुरान ने भी इंसानों को हक के इंतखाब दिया है, अल्लाह ने, कि आपको अल्लाह ने इरादे की ताकत दी है, इख्तियार की ताकत दी है, अपनी मर्जी से इंतखाब करें अपने लिए, और उसकी बुनियाद पर आपके आगे जवाबदेही होगी। पाकिस्तान के आईन ने भी लिखा है कि पाकिस्तान के अवाम अपने हुक्मरान मुंतखब करेंगे, वो हुकूमत करेगा जो अवाम का मुंतखब होगा। 2024 8 फरवरी को अवाम ने तमाम की तमाम जबर, शायद लोगों को फस्तैयद का माना नहीं पता, तमाम के तमाम जबर, जुल्म, लाकानूनियत, हर किस्म की आइन की खिलाफ वर्जी की कि ताकि लोग इंतखाबात में ना आए, उनका वोट डालना ही मसला बन जाए, मुश्किल हो जाए। 1000 रुकावटें खड़ी कर दी उनके सामने, जो आप जानते हैं। लोगों ने फिर भी इस पलीद मंसूबे को शिकस्त दी, जो पाकिस्तान के खिलाफ था, और आपने देख लिया उसके नतीजे आज, जो पाकिस्तान के आइन के खिलाफ था, पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ था, इस खित्ते के सिक्योरिटी के खिलाफ था, इस पूरे खित्ते के अमन और अमान के खिलाफ था। इन्होंने उस अवाम के फैसले को अपनी पाँव की ठोकर तले रखा, हर चीज को अपने बूटों तले रौंदा। ये है जुल्म। हम इसके लिए निकले और इंशाअल्लाह हमारा अहद है, हम जब तक जिंदा हैं ना 8 फरवरी को भूलेंगे इंशाअल्लाह, ना 26 नवंबर को भूलेंगे इंशाअल्लाह, ना हमारे शोदा जहाँ पर कलेक्टिवली मारे गए हैं, हम नहीं भूलेंगे इनको। हम बच्चे गुबराह के शोदा को भी नहीं भूलेंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान पूरे के शहीदों को नहीं भूलेंगे, अपने बेटे, जो वतन के बेटे हमारे शहीद हुए हैं इस वतन की हिफाजत में, हम उनको भी नहीं भूलेंगे। हम सब एक हैं। गलत स्ट्रेटजीज, गलत रास्ते, गलत इकदामात, पाकिस्तान के अवाम की मर्जी के खिलाफ पार्लियामेंट से पूछे बगैर जो किए जा रहे हैं, ये उन सब का नतीजा है, और हम इन सब की मजम्मत करते हैं। जो भी इस जुल्म में शरीक है, अल्लाह ने कुरान में कहा है, लानतुल्लाह अला ज़ालिमीन, जालिमों पर अल्लाह की लानत, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है। खुदा लानत करता है, उसके मलाइका लानत करते हैं, और हम सारे भी उन जालिमों पर लानत करते हैं। इंशाअल्लाह फ़लस्तीन के हवाले से, गजा के हवाले से हमारे साथ जनाब सेनेटर मुश्ताक साहब हैं, वो बातें करेंगे, और बाकी भी करेंगे, मुस्तफा भाई भी हैं। मैं इन्हीं बातों पर बात खत्म करता हूं। अच्छा हाँ, एक बात रह गई, हम इसलिए भी देखिए, सारे सियासी कैदियों को रिहा होना चाहिए, और सर फहरिस्त इमरान खान है। इस वतन का वकार है, इस वतन की इज्जत है, इस वतन का पूरी दुनिया में सॉफ्ट इमेज है। इसकी वजह से पाकिस्तान की कोई अच्छाई दुनिया को नजर आती है। बाकियों के स्याह और मकरू चेहरों से उनको बेकारी पाकिस्तान, हकीर पाकिस्तान, लाकानियत वाला पाकिस्तान, फरसूदा पाकिस्तान नजर आता है। लिहाजा इमरान खान को आज़ाद होना चाहिए, सारे सियासी कैदियों को आज़ाद होना चाहिए। हम इसीलिए भी निकले। पहले कंप्लीट होने दो, फिर सवाल। सबसे पहले तो मैं मस्जिद खदीजतुल कुबरा में जो बहुत बड़ा अंदोखनाक वाक़या हुआ है उस पर ताज़ियत करता हूँ। शुहदा की शहादत की कबूलियत, ज़ख्मियों की शिफायाबी, और जितने भी पसमानदगान हैं, हम सब उसके पसमानदगान हैं, उनके साथ ताज़ियत करता हूँ। और इस खदीजतुल कुबरा मस्जिद की जो अंदोखनाक वाक़या है, ये इंटेलिजेंस फेलियर है, सिक्योरिटी फेलियर है। इसके ज़िम्मेदार वफाकी हुकूमत हैं। हम शहबाज शरीफ, उनके काबीना, उनके सरपरस्तों के खिलाफ अवाम की अदालत में जामे मस्जिद खदीजतुल कुबरा के FIR दर्ज करते हैं। दूसरी बात, 8 फरवरी को मैंडेट पर डाका डाला गया, बंद किया गया इस मस्जिद जी, मैंडेट पर डाका डाला गया, और मैंडेट पर डाका
ये दस्तूर पर डाका है, पार्लियामेंट पर डाका है, जमहूरियत पर डाका है, कायद के पाकिस्तान के ऊपर डाका है। उसी के खिलाफ हम आज एहतजाज के लिए निकले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज पहिया जाम था, आज शटर डाउन था, बावजूद ये कि पाकिस्तान को ओपन एयर प्रिजन बनाया गया है, पुलिस स्टेट बनाया गया है, लेकिन इसके बावजूद आज लोग निकले नहीं हैं। दुकानें बाजारें बंद रही हैं, ट्रांसपोर्ट बंद रहा है और खौफ की फिजा हुकूमत ने ऐसी बनाई थी कि आज उन्होंने फैसल मस्जिद को भी आवाम के लिए बंद कर दिया है। पूरी इस्लामाबाद की पुलिस आज सिर्फ 8 फरवरी की यौम सियाह को नाकाम बनाने के लिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को वो लगा दिया गया है और यहाँ पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान को डराए धमकाए भी जा रहा है और गिरफ्तार भी किया जा रहा है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। जब जाली हुकूमत आ गई, मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया, तो जाली हुकूमत वजूद के अंदर आ गई, गासिब आ गए, कब्जगीर आ गए, चोर आ गए, डाकू आ गए और मैंडेट चोर जब हुकूमत में आ गए तो मईशत की सूरत हाल आप देख लें। बदतरीन महंगाई है, बदतरीन बेरोजगारी है और इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट खत्म हो चुकी है और पाकिस्तान की मईशत जो है वो गिर रही है। फिर आप उसके साथ देख लें लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल, बलोचिस्तान से इस्लामाबाद तक दहशत गर्दों का राज है, राज। रेट ऑफ द गवर्नमेंट वो मौजूद नहीं है और जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ ये टोटल फेलियर है वफाकी हुकूमत की, इंटेलिजेंस एजेंसियों की, सिक्योरिटी इदारों की टोटल फेलियर है। और उसके साथ साथ आप देखें सियासी कैदी इमरान खान को इन्होंने कैद रखा है। पूरी कौम को इमरान खान की सेहत के हवाले से तशवीश है, क्यों छुपा रहे हो? इमरान खान और सियासी कैदियों को कोई नुकसान पहुंचा तो इसकी बराह रास्त जिम्मेदारी शहबाज शरीफ और उसके काबीना, उनके सरपरस्तों की होगी। इसलिए हम ये मुतालिबा करते हैं इमरान खान को रिहा किया जाए, उनके पार्टी लीडरशिप, उनके खानदान, उनको उनसे मिलने दिया जाए, उनके बशरी हुकूक बहाल कर दिए जाए। इसी तरह बुशरा बीबी, एजाज चौधरी, शाह महमूद कुरैशी और मुजाहिमत की अलामत डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर जितने भी असीरान हैं उनको रिहा किया जाए। इसी तरह ईमान मजारी जो कि बशरी हुकूक की बात करती है, हादी अली चट्टा जो बशरी हुकूक की बात करते हैं, उनको आपने गिरफ्तार किया है, उनको रिहा कर दिया जाए। सोहराब बरकत को, उनको सहाफियों को, कल उन्होंने बिलाल गौरी को जो कि एक सहाफी है, मोतबर सहाफी है, उनको उन्होंने एयरपोर्ट पर स्टॉपलेस के अंदर डाला, हथकड़ियां डाली और उनकी तस्वीरें उतार के पूरे पाकिस्तानी मीडिया में फैलाई। इन्होंने सहाफत का गला घोंट किया है, इन्होंने प्रेस को हथकड़ियां पहना दी है, इन्होंने सेंसरशिप का राज इस पाकिस्तान के ऊपर जो है वो कायम कर लिया है। इसलिए हम सियासी असीरान की रिहाई का मुतालिबा करते हैं, मारंग बलोच की रिहाई का, अली वजीर की रिहाई का, अब्दुल समद की रिहाई का और तमाम सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालिबा करते हैं। और उसके साथ साथ में ये भी हुकूमत को खबरदार करना चाहता हूं कि अब जाली वजीर आजम जा रहा है ट्रंप की गुलामी में, ट्रंप की खुशनुदी के लिए वाशिंगटन में पीस बोर्ड के पहले इजलास में। इस पीस बोर्ड में ट्रंप के एक तरफ नेतन्याहू जो जेनोसाइड का मुर्तकिब है, जो वार क्रिमिनल है, जो 6,80,000 फलस्तीनियों का कातिल है, वो बेटा होगा और दूसरी तरफ ये जाली वजीर आजम बेटा होगा। ये उसके साथ टेबल शेयर करना चाहता है, ये उसके साथ टेबल शेयर करना चाहता है, ये उसके साथ हैंड शेक करना चाहता है, ये उसके साथ सलाम मशवरे करना चाहता है। ये कुल्लम कुल्ला इनहिराब है इकबाल और कायद के फलस्तीन पॉलिसी से। ये मस्जिद अक्सा से बेवफाई है, गजा के खून से गद्दारी है और फलस्तीन को फरोख करना है जिसकी पाकिस्तानी कौम किसी सूरत इजाजत नहीं देगी। इंशाअल्लाह हम इस अज़म का इजहार करते हैं कि ट्रू डेमोक्रेसी के लिए, साउदर्न पार्लियामेंट के लिए, इंडिपेंडेंट जुडिशरी के लिए और उसके साथ साथ फंडामेंटल राइट के रेस्टोरेशन और कॉन्स्टिट्यूशन के रेस्टोरेशन के लिए ये मुजाहिमत जारी रहेगी। हम जेलों में जाएंगे, हम पुलिस गर्दी बर्दाश्त करेंगे, हम फिस्तायत का मुकाबला करेंगे, लेकिन जमहूरियत के परचम को उठाए रखेंगे, अवाम की हुकूक के परचम को उठाए रखेंगे। इंशाअल्लाह मुस्तकबिल जमहूरियत का है, आमिरियत जलील होगा, आमिरियत का चेहरा
सियाह होगा और आमिरियत इंशाअल्लाह शिकस्त खाएगी। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।